हैबिट्स बदलो, अपनी हैबिट्स, आदतें सुधारो। क्या होगा आदतें सुधार के? क्यों 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 सुधारूं मैं अपने आप? क्यों बदलूं अपने आप को? ढंग की आदतें डालोगे तो टाइम पर काम करोगे, और वेल मैनेज्ड लाइफ होगी तुम्हारी, और हेल्दी रहोगे, बॉडी से भी और दिमाग से भी, और टाइम सेव होगा। और क्या और टाइम सेव होगा तो सब सेव होगा। हट। तो किसके मम्मी पापा नहीं बोलते कि आदतें सुधारो अपनी, ऐसी आदतों के साथ कहीं नहीं जाओगे। पर वी डोंट टेक अ स्टेप। तो आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो कि क्या वो कुछ हैबिट्स हैं दैट आई फील आर वेरी एसेंशियल एंड आई फील आर good to be developed at this age, especially in teenage. It helps a lot. Let's get started with the video without any delay. Before we get started with what are those 10 habits that I would suggest to get developed with, obviously, आप सारी habits एक साथ develop नहीं कर सकते. Nobody can. So start with one and eventually you can increase, because as soon as you adopt a habit and you get results out of that, you will feel to develop yourselves more. Also, there's going to be separate video for each habit that I'm going to discuss. So make sure you don't forget to subscribe to the channel if you're new here. And the first habit is to get into meditation. The first habit is to meditate. You know, discussing the benefits of meditation is of no use, because once we open Google and we have hundreds and thousands and lakhs of explanations for you to begin meditation. So we all know how important meditation is, and it actually is. I've been doing meditation since a while and I've felt changes because of that. Meditation is very important as it relaxes your mind, it increases your blood flow, it calms you, it like physical relaxation, makes you concentrated, makes you focused, it gives you efficiency in breathing, it increases your energy and whatnot. So there are a lot of benefits to get started with meditation. So yeah, the first habit will be meditation. The second habit is to get into a habit of reading spiritual texts. I know बहुत stupid लगेगा when I say कि start reading spiritual books, but trust me, they are very essential to get into habit of reading. They give you knowledge that none of our formal education teaches us. It is intrinsic to our existence because we are created by God, and reading spiritual texts will give us that knowledge, will promote the positive thinking in us. And if you want a suggestion from me to read which book, I would definitely suggest you the Bhagavad Gita. It has literally changed the way I used to think, the way I used to, do things and take things to me, and literally changed everything. So I would suggest anybody who's watching this video to read the Bhagavad Gita once with an open mind, and trust me, if you read it with an open mind, your life is definitely going to change, I can guarantee you. The third habit is to have a positive outlook. Now, as I've told in many of my videos, that I see my friends, my age grouped people be very negative about how life looks, how things are to us. They are very, very cynical about things. They criticize things a lot. They take each and everything very easily in a negative manner. So let's develop this habit to see the positive perspective of that thing that just happened. कुछ भी हुआ हमारे साथ, क्या कुछ अच्छा नहीं होगा उसमें? सब चीज़ें बुरी थोड़ी ना होती है यार, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ सीखने को मिलता है. तो वो क्या चीज़ है जो सीखने को मिली? एक हैबिट डेवलप करते हैं कि यार कुछ भी होगा ना तो एक बार सोच के देखेंगे कि क्या अच्छा हुआ इसमें. कोई बहुत बड़ी चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि यार कुछ बहुत बड़ा हुआ तब हम सोचेंगे कि अब देखते हैं इसमें क्या पॉजिटिव हुआ. अरे हमारे साथ कितनी सारी चीज़ें होती है दिन में. सो लेट्स हैव अ लुक कि जो छोटी छोटी चीज़ें भी हो रही है ना, व्हाट्स द पॉजिटिव थिंग, व्हाट इज़ पॉजिटिव दैट यू कैन डिराइव आउट. जब छोटी छोटी चीज़ों से वी हैव अ लुक इन अ पॉजिटिव मैनर, अगर हम उनको पॉजिटिव मैनर में देखेंगे, this is automatically go and sit into our brains, and our brain will start reacting in a very positive way than in a cynical way. And for people who's watching this video and thinking कि oh, we don't think in negative manner, Kimon. जब हम कहते हैं ना भाई ये बहुत बुरा हुआ यार, ऐसे ही क्यों होता है, पता है मेरे को लगता है ना ये बहुत बुरा है, ये है वो है, उसे भी नेगेटिव ही कहते हैं. या फिर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो ऐसा सोचते हैं, आपको लगा ओह हाँ ये तो वैसे ही करती है, तो make sure you send this video to that person also. Habit number 4 is also a very, very important habit, and this habit is to develop attitude of gratitude. तो ये जो point है, I've talked a lot about this particular thing in my videos because
it's very important to have the attitude to give thanks to somebody, to appreciate somebody for if somebody did something to you. Very important. आप जिस जगह पे हो, बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपसे बहुत नीचे हैं, जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो आपके पास हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी थैंक, वी बी ग्रेटफुल अबाउट द थिंग्स दैट वी ऑलरेडी हैव, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. वो बहुत ईजी है, लेकिन जितना आपके पास है बहुतों के पास नहीं है. इसलिए इट्स वेरी एसेंशियल यू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. थिंक अपॉन दिस. ओके, सो द फिफ्थ हैबिट इज टू डेवलप द हैबिट टू प्लान थिंग्स. हमें पता है, हमें प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है. वी गो बाय व्हाट इज द फ्लो सेज अस. पर पता है क्या, प्लानिंग का मतलब ये नहीं तो मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, इधर ये करूंगा, उधर वो करूंगा. इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट. किसी भी चीज़ को एक बार ऑर्गेनाइज करना ना, उसे प्लानिंग कहते हैं. एक बार मन में ही सोचना, ज़रूरी नहीं है वो पेन पेपर लिख के लिखें उस चीज़ को. एक बार मन में भी हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया ना कि हाँ यार कल मुझे इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं ये पहले कर लूँगा. आई ट्राई टू एडजस्ट, ये वाली चीज़ थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बाद में करूँगा, इसको आगे करूँगा, उसे भी प्लानिंग कहते हैं. वी नीड नॉट डेवलप दिस हैबिट टू गो विद द फ्लो, बट प्लान सर्टेन. नंबर 6 इज टू एक्सरसाइज. और आई नो कि क्या रिएक्शन होगा. हम तब अलर्ट होते हैं जब हमारी बॉडी दिखाने लगती है भाई मुझसे नहीं हो रहा, तू एक्सरसाइज कर ले थोड़ी. तो वो सिचुएशन ना आए, या वो सिचुएशन अगर आ गई है तो बी अलर्ट. हमें स्टार्ट करना है टू एक्सरसाइज. बिकॉज देखो, एक्सरसाइज के फायदे हम सबको पता है, ठीक है. हम छोटे छोटे बच्चे नहीं है कि हमें बता लगा बीटा एक्सरसाइज करने से ये होता है. हमें सबको पता है एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये हैबिट को डेवलप ही नहीं करना चाहते. हैबिट नंबर 7 इज टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ गिविंग योरसेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक. टू डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक. One of the most biggest reasons of you losing confidence and you not being able to do something is because you talk to yourself in a very negative way. When we talk to ourselves in a negative manner, it demotivates us. Instead of giving us that confidence that we can do this task, हम ट्राई तो करेंगे अगर हम अपने आप से पॉजिटिव बात. भाई तू कर सकता है ये, इट्स वेरी इजी. ये चीज है ना, एक और बार ट्राई करता है, कैसे नहीं हो. बहुत से लोग होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करने के लिए होते हैं. वी डोंट नीड अनदर पर्सन जो हम अपने आप को ही डिमोटिवेट करें. अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राई दिस. द नेक्स्ट हैबिट वुड बी टू चूज वन एस्पेक्ट इन योरसेल्फ जिसमें यू वांट टू डेवलप. So what's that one aspect of yourself that in which you want to improve yourself? What is that? It could be your way of speaking, you not being able to write long answers, you not being able to read something properly or read fast, anything. The 9th habit is going to be to have a me time. The me time means अपने लिए time. मतलब कोई फालतू चीज़ में नहीं पड़ना है, कोई फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने आप को टाइम देना है. अब वो कुछ भी हो सकता है. आपको गाने सुनना पसंद है, सुनो गाने. नाचना पसंद है, डांस करो उस टाइम पे. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल भजन सुनना पसंद हो तो भजन सुनो. इफ़ यू वुड लाइक टू चैंट एट दैट टाइम, चैंट. इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग, रीड. कुछ भी हो सकता है. टेक दैट टाइम आउट इन विच यू डू ओनली द थिंग्स दैट यू लव टू डू. ओके, यू नीड टू डू दैट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो कौन देगा. यस. एंड द लास्ट पॉइंट इज टू डेवलप ऑन योर हॉबी. नाउ हॉबी इज टू लिसन टू सॉन्ग्स, तो वो अलग चीज़ हो गई. आई एम टॉकिंग अबाउट अ हॉबी दैट हैज़ समथिंग टू डू विद द फ्यूचर एस्पेक्ट. कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत अच्छे हो. फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग में बहुत अच्छे हो, तो गिव सम टाइम, नॉट नेसेसरली डेली, बट एटलीस्ट इन अ वीक यू कैन गिव 2 to 3 days. ओके, something that you always wanted to do. Like I told in my last video कि वो कौन सी चीज़ है which interests you a lot, which literally you want कि यार ये चीज़ मुझे करनी है. पर वो कौन सी चीज़ है. हो सकता है यूट्यूब चैनल चालू करना हो सकता है आपको खुद का इंस्टा पेज चालू करना हो सकता है कि आपको डांस सीखना हो सकता है आपको पब्लिक स्पीकिंग का कोई कोर्स करना हो. इट कुड बी एनीथिंग. वॉट इज़ दैट थिंग एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट. सो गिव टाइम फॉर दैट थिंग to develop that. And remember, हमने 10 हैबिट्स के बारे में बात की है. एक साथ 10 हैबिट्स को ग्रास्प कर लेना कि और मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. पूरी 10 हैबिट्स एक साथ अडॉप्ट नहीं हो सकती. इट विल बी एन इवेंचुअल प्रोसेस. ऑल्सो अगेन टेलिंग दैट
कि सारी जो भी हमने हैबिट्स डिस्कस किए हैं इसके ऊपर अलग अलग सेपरेटली वीडियोस आने वाले हैं. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू डोंट मिस अ वीडियो. इफ़ यू लिटरली ऑनेस्टली लाइक्ड कि मैंने जो भी बोला, appreciate me by hitting that like button. That's it for this video. Make sure you subscribe to my channel. This is me, Ananta, signing off. You're watching Study in Praxis. Namaste.